ओके। हेलो एवरीवन। तो आज मैंने इनवाइट किया है राकेश को। एंड राकेश के बारे में मैं पहले आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। राकेश ने सबसे पहले वो यूएस में 3 से 4 साल थे, फिर उसके बाद वो इंडिया आए, फिर उसके बाद वो यूके गए, एंड देन फिर वो इंडिया आए। उसके बाद फिर से यूएस मूव किया, एंड देन ही वेंट टू यूरोप, एंड देन नाउ अगेन ही इज इन यूएस। तो आज उनको इनवाइट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने जो इंडिया में सेटल होते हैं उसकी जर्नी कई बार देखी है, और अलग अलग ईयर्स में देखी है। मींस अगर 2014 में क्या एक्सपेंसेस थे इंडिया में मूव होने के बाद, क्या क्या खर्चा होता है, फिर उन्होंने 2016 में भी, 2020 में भी, तो अलग अलग ईयर्स में उन्होंने ये जर्नी बहुत डिटेल में देखी है। तो जो लोग इंडिया मूव होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। रीजन बीइंग कि हम लोग एक बार मूव होते तो उसमें हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कोई अगर बार बार मूव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको एक वास्ट एक्सपीरियंस है। तो आज हम राकेश से वही सारी बातें करेंगे इंडिया सेटलमेंट। हाय राकेश, हाउ आर यू? Hey, Hemant, I'm good, man. How are you doing? या गुड गुड। तो First राकेश of all, स्टार्ट। या no, या before starting, first of all, thanks for introducing me. And first of all, thanks for having me here. And then I want to call it out specifically. Whatever you're doing a great job there. I've been watching your videos regularly. The way you've been educating people or the way you've been trying to help. I remember your vlogs starting from your Sweden days when you started vlogs in order to just help people कि अगर तुम स्वीडन में आ रहे हो तो किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, what are the things you have to go through so that you can start helping. And I remember कि तू कहीं पे भी एक पार्क में खड़ा हो जाता था, and then you started making the videos, and then it shows that when you are doing something from an honest point of view and an honest mind, that's how people start connecting with you and they start realizing, yes, whatever you are saying, we are saying as well. And I see a great collaboration with a lot of people. So thank you for having me. And I'll share my experience and my journey, and I hope it is helpful to other people as well. डेफिनेटली डेफिनेटली। एंड द पर्सपेक्टिव इज कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं। कुछ चीजें हम हमारे दिल के पास होती है जो हम केवल इसलिए करते हैं क्योंकि इट सेटिस्फाई यू, एंड व्हेन यू हेल्प पीपल एंड इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। तो आज से यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो एंड आई होप हम कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज लेते हैं जिससे किसी ना किसी की हेल्प डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट में आप अपनी जर्नी बताइए एज अ समरी के। आपने इतनी बार मूव किया तो कहाँ कहाँ रहे आप और क्या जर्नी थी आपकी? Sure. Basically, I started my career in 2006 or 2010. I moved to US first time in Texas actually, and then I lived there for 3 years, and then I came back to India, thinking that I may or may not move again. But then there were some again work requirements that I moved to London again. At that time, I lived in India for maybe 6 months or so. So I got settled down for 6 months only. और उसके बाद फिर UK आया, 1 साल वहाँ रहा, ओके। and then I came back to India again, thinking I will not move again. And then again, project requirements, and then I moved to California, and then I stayed there for 3 years. Then I thought, then I moved to Germany for a year, and then I ओके thought like, now I will not move. I'll go back to India and I'll stay there. And then I moved to Hyderabad for 2 years, and at that time actually COVID also stuck, so we were in India, and ओके then and we were very happy as such. But again, work requirement, I had to move back to Atlanta. Now I'm in Atlanta in US for last 2 years. I came here in February 2022 and going so far. ओके। सो हर बार मूव होते हैं, सिचुएशंस, वर्क रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। एंड अपने वीडियोस में हमेशा मैं बोलता हूँ कि वी शुड बी फ्लेक्सिबल, और कोई भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला कि सारे लोगों को इंडिया आ जाना चाहिए या सारे लोगों को वहां चले जाना चाहिए। Hmm. जिसको जिसको जहां हैप्पीनेस मिलती है, सेकंड जो हमारा कर्म है, जो हम काम करते हैं, वो सबसे ऊपर होता है। हम जिस एज में है, हमारे को अगर ये भी, जैसे हमारे फौजी लोग हैं, सियाचिन चले जाते हैं, हमारे फौजी लोग हैं, कितने उस पे आते हैं, तो उनका कर्म है। उनको जहां उस वक्त उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, दे शुड मूव देयर, एंड डिपेंड्स देयर चॉइस आल्सो। देयर इज नथिंग Right, फोर्स, राइट? right, एंड right, आई right. नो आई नो आपके उसमें आप हम लोग बात करते रहते हैं कि इट्स ऑलवेज गुड हियर, इट्स ऑलवेज गुड गुड देयर। तो इट्स ऑल अबाउट द टाइम।
उस टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है। आई अंडरस्टैंड Hey, दैट। and I think during my different time transitioning to India, I've seen different how the India has evolved over the period of time. Like when I moved to US in 2010, India was a different country at that time, and then I came back to 2013. I didn't see much of a difference. Pretty much the same thing. I was in Gurgaon, तो वही गुड़गांव में 4 4 5 5 घंटे के light cuts and all those things, traffic pollutions and all those things. But and then I came back to London and then moved back to India again, Gurgaon. I didn't see many things improving. But 2016 में when I came to US and then I 2020 में जब मैं वापस इंडिया गया, then it was completely changed. So ओके। जो 2020 में जब मैं वापस गया, so it was a pleasant surprise कि infrastructure better था, electrical infrastructure better था, road infrastructure better था. There were a lot of options. Like my son was in fourth grade at that time, so pretty much all American restaurants were there. So my son never felt कि मेरे पास यहाँ पे ये accessibility नहीं है, ये accessibility नहीं है. We lived in a society जहाँ पे the kind of school he was going, वहाँ पे अगर there were 30 kids in the class, out of 30, 20 were like either US returned or UK returned. हमारी society में in fact they used to celebrate Halloween as well. So my son never felt that कि I'm in a no man's land or somewhere कि जहाँ पे I cannot talk to anyone or people have different culture or something. So he really enjoyed Indian culture as well as like mix of people coming from US and different part of the country, different part of the world. So he never felt that way in India कि oh मैं कहाँ आ गया. So and then whatever he wanted to eat, he always liked Indian food. और जब वो इंडिया में रहा और उसको US के Taco Bells and Chick-fil-A's and other things जो he wanted to eat, so he could eat that as well. So he was pretty happy in India as such. वेरी गुड। अपने देखने वालों को मैं बता दूं कि राकेश के एक बेटा है एंड ही इज यूएस बॉर्न, एंड एक बेटी है, शी इज आल्सो यूएस बॉर्न। तो एंड द थिंग इज कि मेरे बेटे जो और मेरी जो बेटी है उसके बराबर ही है दोनों। एंड उसमें भी मैं एक बात और बता दूं कि एंड दे बोथ केम, मींस नॉट नॉट बोथ, बेटा गुड़गांव में भी रहा है और हैदराबाद में भी रहा है। तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। चलिए अब सीधे स्टार्ट करते हैं पॉइंट से कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, रीसेंट एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा कि वो फिगर तो चेंज हो जाते हैं। अगर कोई इंडिया आ रहा है, ठीक है, अब उसे सेटल होना है इंडिया में, तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं जो इंडिया में सबसे पहले आप ये बताइए, मूवर्स एंड पैकर्स। यूएस से कोई आ रहा है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं मूवर्स एंड पैकर्स के, एंड हाउ दे वर्क। Okay, so different options. When I moved from Germany, my company sponsored my all my stuff that I could take to India at that time. So they arranged everything for me. But there are different mover packers companies. I don't remember specific names on top of my head, but if you go and research that, typically you can bring your furniture either in like full container or you can share the container as well. Like usually there's 20 cubic feet container that which you can use. Pretty much आपका 2 bedroom stuff या 3 bedroom stuff can come into 20 cubic feet containers. ओके। And अगर आप US से आ रहे हैं, because I moved from Germany at that time, depending on what level of services you want, कि for example कितने टाइम का आपको storage चाहिए, कितना आप इंश्योरेंस ले रहे हो, कितना आपका हैवी सामान है वर्सेस कितने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बेस्ड ऑन दैट उनके प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप टीवी वगैरह लेके आ रहे हो, वो सब लेके आ रहे हो, दे हैव टू हैंडल दैट वेरी केयर बिकॉज दे आर फ्रेजाइल। सो उसकी करेक्ट पैकिंग जो होती है थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। बट टिपिकली इफ यू सी बिटवीन 5,000 to $8,000, आप अगर टिपिकली एवरेज मान के चलो तो उसमें आपका 2 bedroom का स्टफ सारा आ जाता है। सो यू डोंट हैव टू थिंक कि ओ मैंने यहाँ पे सारा स्टफ ले रखा है, देन हाउ डू आई गो एंड देन टेक इट बैक टू इंडिया। यू कैन टेक इट, बट मेरी सजेशन नॉर्मली ये है कि अगर आपके पास फर्नीचर है, बिकॉज इंडिया में जो फर्नीचर की क्वालिटी है दैट इज मच बेटर देन यूरोप एंड ऑल दोस थिंग्स, द काइंड ऑफ फर्नीचर वी यूज। बिकॉज यूरोप यूएस में जो फर्नीचर चलता है वो इसलिए थोड़ा लाइट वेटेड एंड थोड़ा लाइट चलता है, लाइक आई के टाइप ऑफ फर्नीचर, बिकॉज लोग वहाँ पे मूव बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, सो दे वांट टू कीप इट वेरी लाइट। वेयरएज इंडिया में अगर आप देखो तो जिस तरह के बेड्स आते हैं, जिस तरह के सोफेज आते हैं, सो आई थिंक दे आर बेटर क्वालिटी एंड बेटर टेक्सचर्स एंड फैंसीज होते हैं थोड़े कंपैरेटिवली। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई इंडिया मूव हो रहा है, सो ही डजंट हैव टू ब्रिंग ऑल द फर्नीचर। अगर आप यूरोप से फर्नीचर यूरोप से आ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आ सकते हैं। जैसे आई ब्रॉट माई ओन टीवी, आई ब्रॉट माई म्यूजिक सिस्टम एंड ऑल दोस थिंग्स। जो भी मेरे किचन अप्लायंसेस थे, आई ब्रॉट देम एंड दे वर्क वेरी वेल इन इंडिया। बट अगर आप ओके। यूएस से आ रहे हो
तो क्योंकि पावर वोल्टेज डिफरेंट है वहाँ, 110 वोल्ट है वर्सेस 220 वोल्ट है इंडिया में। सो कुछ चीजें काम करती हैं, कुछ चीजें काम नहीं करती हैं, तो इट्स नॉट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। पहले बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया में नहीं मिलती थी, जो यूएस स्पेसिफिकली मिलती थी, पर आई थिंक आज के टाइम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलती और यूएस में या यूरोप में मिलती है। प्रीटी मच ऑल द ब्रांड्स आर देयर, एंड इनफैक्ट इंडिया के अपने फ्लेवर्स भी मिलते हैं जो कि बेटर प्राइसेस पे मिल जाते हैं समटाइम। सो अगर यूएस से आप टीवी लेके आ रहे हो तो इट मेक्स सम टाइम, बिकॉज यूएस में थोड़े टीवी कंपैरेटिवली चीपर है। अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीजन दैट समबडी शुड बी ब्रिंगिंग एनीथिंग फ्रॉम यूएस। एंड सेकंड, मार्केट प्लेस जो मार्केट है यूरोप में या यूएस में, वो इजी है। इंडिया में नोबडी रियली बाय सेकंड हैंड स्टफ एंड ऑल दोस थिंग्स, बट यूएस में अगर आपके पास सेकंड हैंड स्टफ है तो यू कैन इजीली सेल इट, because people keep on moving, people come there for like 2-3 years, they buy it, they sell it again, and usually यहाँ पे चीजें खराब भी नहीं होती हैं इतनी जल्दी, क्योंकि थोड़ा क्लीन है चीजें। तो I would suggest कि you don't have to really bother too much about carrying a lot of stuff back to India, and you can always come back and then बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके बच्चों की आपने ली होती हैं, and kids are attached to that. Yes, you can bring them अगर आपके पास अपनी clothing हैं या आपकी कुछ स्पेसिफिक चीजें। But I think 2 bedroom stuff, if even if you want to bring it, तो 20 feet cubic container $5,000 में आराम से आ जाता है। एंड यू कैन डू मैथ्स एज वेल, लाइक $5,000 इज लाइक क्लोज टू 4 लाख रुपीज। अगर आपको लगता है कि यार मेरा 4 लाख रुपीज तक का वर्थ का सामान है तो ही मैं लेके जाऊँ, अदरवाइज pretty much I can use the same money and can go and buy stuff in India in that money. So डिपेंड करता है, बड़ा सब्जेक्टिव सा है कि आप कितने साल रहे हो उस कंट्री में और आपने कितना सामान जोड़ लिया अपने साथ। अगर आपके पास खूब सारा सामान है and you attach to it, you regularly use it, it makes sense that you should carry things along with you. But अगर आप 2-3 साल रहे हो और आपने ज्यादा सामान नहीं लिया है तो यू डोंट हैव टू कैरी इट। प्लस डिपेंड करता है आप रह भी कहाँ रहे हो। फॉर एग्जांपल जब आप कैलिफोर्निया जैसी सिटी में या न्यूयॉर्क जैसी सिटी में रहते हो, नॉर्मली वहाँ पे 1 bedroom 2 bedroom अपार्टमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो लोग नॉर्मली अपार्टमेंट्स में रहते हैं वहाँ पे। बट इफ लिविंग इन लाइक नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, अटलांटा काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे नॉर्मली लोग बड़े बड़े 3-3 4-4 बेडरूम के घरों में रहते हैं, तो आप इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप काफी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हो बिकॉज यू आर विद फैमिली नाउ, एंड देन आप कुछ चीजों को अटैच होते हो दैट यस आई वांट टू कीप इट बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट मनी, एंड देन यू वांट टू ब्रिंग इट, यू कैन ब्रिंग इट दैट। तो मैं समराइज कर देता हूँ जो मुझे समझ में आया कि जो एनआरआईज मूव होना चाहते हैं उनको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए कि जो सामान हम लेके जा रहे हैं क्या रियली वर्थ है। अगर $2,000 को ले जाने में $2,000 ही खर्च हो रहे हैं, $2,000 का फर्नीचर के लिए मैं $2,000 ही ले जाने में लगा रहा हूँ, तो उसमें फायदा क्या है। उसको वहां बेच के वो फ्रेश यहाँ पे ले सकता है, उसको फील भी नया आएगा कि नया फर्नीचर ले ले यहाँ पे स्पेशली। और एक टाइम था जो मुझे याद है आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं कि अगर वहां पे आईफोन लॉन्च हो रहा तो यहाँ पे 6 महीने बाद लॉन्च होता था, बट आज सेम डेट में लॉन्च हो रहा है। इनफैक्ट आईफोन 1 भी इंडिया में रहा है, एग्जाम्पल दिया मैंने, राइट। तो एक कैलकुलेशन ये करनी चाहिए कि जो चीजें आपके बच्चे जैसे खिलौने हैं, कपड़े हैं या किचन का कुछ ऐसा सामान है जो कि यूनिक है, वो लाना चाहिए। एंड बाकी ये वोल्टेज वाला बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना हम लोग को रियलाइज होती है जब व्हेन वी मेक अ मिस्टेक, जब वो मिस्टेक हो जाती है, अरे हम यहाँ पर ले आए, ये तो हमने पॉइंट सोचा ही नहीं। इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं बस छोटी छोटी बातें ध्यान रखने के लिए कि वो कैसे काम आएंगी, कि यार हम वही इलेक्ट्रॉनिक्स लेके जाएं कि जो वहां पे एक्चुअली, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप का तो एडाप्टर आप चेंज कर दोगे, राइट, बट नॉट फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स, बट राइट। लैपटॉप में भी एक स्टोरी है बिकॉज आपकी इंटरनेशनल वारंटी समटाइम्स दे गेट लैप्स्ड, सो यू हैव टू कंसीडर दैट पॉइंट एज वेल कि अगर आप इंडिया में जाके इवन इफ यू हैव टू स्पेंड एक्स्ट्रा 10,000, बट आपको फिर उस सामान की वारंटी मिलती है 2-3 years के लिए, राइट। सो दैट मेक्स इट रिस्क फ्री अ लिटिल बिट। अगर आप यहाँ से लेके जा रहे हो तो, और अगर उस लैपटॉप को कुछ हो जाता है तो नोबडी केयर्स अबाउट इट, सो दैट्स अ रिस्क यू हैव टू कैरी अलोंग विद यू। But it should be global warranty, isn't it? In case of I, I agree, but they usually do not entertain the receipts of the foreign countries. I had a very bad experience with HP in that case. So usually it is recommended कि आप अगर जहाँ आप रह रहे हो आप वहीं से वो सामान लो, even if you're paying extra 4-5 thousand rupees on that, that's worth it rather than bringing it ठीक from है, somewhere else. ठीक है। चलिए अब दूसरी पॉइंट पर आते हैं। जो फॉरेन अकाउंट होते हैं हमारे, चाहे वो यूरोप हो चाहे यूएस हो, अब आप इंडिया वापस आ रहे हो तो व्हाट यू रिकमेंड कि वो तुरंत क्लोज कर देने चाहिए या कुछ महीने या कितना टाइम, और क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, दोनों चीजें कवर करिए आप। या सो 2-3 ऑप्शन हैं उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं यूएस से फर्स्ट टाइम आया था तो आई somehow back in mind I knew कि I can always come back here, so I didn't close my US accounts. So I kept just $1,500 in order to just keep that account running, and then उससे बेनिफिट मुझे ये हुआ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यूएस आया
सो मेरे अकाउंट्स वगैरह सब एक्टिव थे, मेरे पास अपने डेबिट कार्ड्स वगैरह सब एक्टिव थे मेरे। सो आई डेंट हैव टू स्ट्रगल ऑन द एयरपोर्ट कि अगर मुझे $15 की ट्रॉली लेनी है अगर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से, सो आई डोंट हैव टू बी वरिंग अबाउट कि मेरे पास एक्सचेंज है या नहीं है। माय डेबिट कार्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स वर स्टिल वर्किंग एट दैट टाइम। सो and plus the moment I landed my because I already had my bank details, so I could update into my employer system, so मेरे salary first day से शुरू हो गई थी उस चीज में। So अगर आपको लग रहा है when you're moving that you may have a chance to come back maybe after 2, 3, 4, 5 years, it's okay to keep the account active here. Just keep running it with $1,500, which is the minimum balance you require. सेकेंड ओके, थिंग इज जब आप इंडिया आते हो, सो उस पर्टिकुलर ईयर का आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। एंड जो ओके, टैक्स रिटर्न आता है वो आपके सेम बैंक अकाउंट में आता है जो आपका रनिंग बैंक अकाउंट होता है। सो जी, एंड यू हैव टू गिव योर बैंक डिटेल्स एज वेल इन ऑर्डर टू गेट सम रिटर्न्स एज वेल, क्योंकि यूजुअली जिस साल आप रिटर्न कर रहे हो इंडिया, उस साल आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आप हाफ ईयर के बीच में आ, फॉर एग्जांपल आप जून या जुलाई में आ गए, तो उस साल की आपको हाफ सैलरी मिली है, बट जो आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है जो आपकी सैलरी से कट रहा होता है वो पूरे साल के हिसाब से कट रहा होता है। तो बेसिकली यू आर ड्यू फॉर सम टैक्स रिटर्न्स इन दैट केस, बिकॉज आपकी सैलरी जो है आपने कम अर्न किया उस पर्टिकुलर ईयर में यूएस में। इन दैट केस वो फिर आपके रिटर्न्स आने होते हैं, आपने रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। सो इफ यू हैव योर बैंक अकाउंट एक्टिव, you can get your returns easily. Like when I was moving from Germany, even though there was a situation, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर डायरेक्ट डिपॉजिट आपके अकाउंट में 3 महीने नहीं आ रहे हैं, in that case we'll close your account. But somehow I did a request to them, and then they consider that because I'm a foreign national, उन्होंने they kept my accounts active for 6 months. I could do my tax returns and everything. Once my tax returns came into my account, I withdrew every month, every penny out of it, moved my money to Indian bank account, and then closed the account. So और कुछ different countries के different rules भी हैं, like Germany में you cannot keep your account open if you're not doing any direct deposit to it. Whereas in US, there is no problem. You just keep the minimum balance $1,500, and then you can keep your account active. But I अच्छा, suggest that it depends on everybody's situation. At least एक साल के लिए you should keep it active so that अगर आपके tax returns हुँ, आने हैं, sometime also what happens is like I've seen some cases जहाँ पे कुछ लोग जब आते हैं यूएस वगैरह से मूव होते हैं, so उन्होंने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट की होती है अपने अपार्टमेंट्स के साथ और उन सबके साथ, एंड देन दे राइट, डू लॉट ऑफ इंस्पेक्शन आफ्टर दैट कि अच्छा आपने कुछ ब्रेक डाउन तो नहीं किया था। और समटाइम ना बड़े शॉकिंग से 6 महीने बाद उनके कुछ बिल्स आ जाते हैं कि यार आपके $600 ड्यू हैं, $700 ड्यू हैं, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम मिली, ये प्रॉब्लम मिली। And then if you don't have a bank account there, then you cannot transfer the money to them. In that case, आपकी credit history में चला जाता है that you haven't paid the money to them. So when you come back next time, it keeps reflecting in your credit history that you have defaulted whatever the payment that is. So that हुँ, doesn't go very well from a credit history perspective. So keep that account active for 6 months or a year based on your situation, so that you can file your tax returns and all those things. And अगर इस तरह कोई unexpected खर्चे आ जाते हैं तो you can take care of that. ओके, व्हाट अबाउट क्रेडिट कार्ड? Credit cards. So credit card का एक option है that you can lock your credit card. So if you go, let's say for example, your Bank of America credit card or Chase account credit card, you go in there and then there is an app. You can say that I'm traveling, and then you can put a lock on your credit card so that nobody can make a transaction out of it. And then you ठीक है, can keep it like, for example, let's say if I have my credit cards which are valid until 2028, right? So I can keep my credit card locked using an app, और मैं उसको कभी भी unlock कर सकता हूँ. So now, for example, मेरा कोई friend US में है and I want to get something from US. So now I can use my credit card to pay for that. I can order at his own place, and then he can bring it when he's coming back to India, right? So आपके पास एक flexibility रहती है that अगर आपको कुछ order करना है, या for example, US के जो normally credit cards होते हैं उसमें foreign exchange fees नहीं लगती है। आजकल तो शायद इंडिया में भी ऐसे क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, बट अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, आप कहीं आपकी कंपनी से आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो कहीं पे भी, राइट, और आपके पास वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, यू कैन यूज इट एनीवेयर, इवन इट्स योर पर्सनल प्लेजर ट्रिप और इट्स योर बिजनेस ट्रिप। सो दैट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन यूज योर ऑन पर्सनल कार्ड एज वेल टू स्वाइप समवेयर एल्स इन ऑर्डर टू redeem those benefits जो कि foreign exchange fees नहीं लगती वहां पे। So that's another advantage. So I would say that keep account active, keep your credit card active as well, as long as तब तक जब तक उसकी एक्सपायरी अपने आप से नेचुरली नहीं हो रही है, और उसको लॉक करके रखो ताकि nobody can make anything out of ओके, it। और वैसे भी यूएस में एक फैसिलिटी है कि 250K तक आपका सिक्योर रहता है, वो इंश्योरेंस रहता है, अगर कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो भी गई है, so they return you back that. So if अगर ऐसा कुछ होता है तो they'll lock your card and then they'll pay you back. ग्रेट, ग्रेट। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे एनआरआई कोई इंडिया रिटर्न हुआ, ठीक? 99% केस में वो आ गया, उसको प्रॉब्लम्स आती भी है तो 6 महीने सेटल होके वो सोचता है ठीक है मैं आ गया, आई एम डन। बट कुछ केसेस में लोग वापस भी जाते हैं, जो Hmm. एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
तो उस केस में ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब तक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी लिमिट है, यू कैन कीप इट एंड उसको लॉक रख सकते हैं या फिर उसको मिनिमम उसमें रख सकते हैं, उसकी लिमिट कम कर सकते हैं। और जब व्हेन यू आर श्योर अब जाना नहीं है, कोई यूज नहीं हो रहा, वो अपने आप पता चल जाएगा कि 6 महीने से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, 1 साल हो गया, कुछ मंगाना राइट, नहीं है, तो राइट, यू कैन डिस्कार्ड एज वेल। ओके, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है। ये तो हो गया बैंक अकाउंट। मेरे को क्या लग रहा है कि हमने जिस टॉपिक के लिए स्टार्ट किया था वीडियो, वो तो बहुत पीछे रह गया। वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीजें जो आज हम बात कर रहे हैं, तो उस पर डिटेल वीडियो बहुत सारे बन सकते हैं। अब तो मुझे ये लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड, बैंक, ये भी इसमें डिटेल में आपने कवर कर लिया हो। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं वो भी आंसर हो गए। तो हम लोग ओके। इसको अब एक एक करके धीमे धीमे बढ़ाते हैं। सेकंड, अब मेरा ये रहेगा, अब जब इंडिया आए आप, तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और कौन सी ऐसी चीज है जो लगता है कि हर बार करानी पड़ी, या एक बार ही, जैसे आधार कार्ड पहले से ही था, पैन कार्ड पहले से था, उसमें कुछ नहीं कराना पड़ता, राइट? इट जस्ट योर अपार्टमेंट लीज एग्रीमेंट ऐसे करके। तो इंडिया के कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि बैंक अकाउंट भी जो चल रहे हैं, अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो क्या कोई ऐसा है कि डोरमेंट बोल के उसको बंद कर देते हैं? इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताइए आप। हाँ, कुछ अकाउंट हैं जो अगर फॉर एग्जांपल आप काफी टाइम से अगर ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो आपको बस ईमेल आती है। फॉर एग्जांपल मेरा आईसीआईसी अकाउंट जो है उससे मुझे ईमेल आती है दैट इफ इन केस आई एम नॉट यूजिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम they make it as inactive, but there's an option that you can go into app and then you can make it active again. Usually what I'll do is because nowadays you have Google Pay and Paytms and all those things, you can just keep making transaction. Nowadays you use those accounts because आजकल because through online system you can order certain things for your family like राखी वगैरह पे या दिवाली पे आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करते रहते हो वहां से उन कार्ड से, तो वो ट्रांजेक्शन होती रहती है। बट अगर मैं आधार कार्ड की बात करूं, यस, एक बार आपने आधार कार्ड बनवा लिया, अभी लास्ट टाइम जब मैंने इंडिया विजिट किया था फरवरी में, आई हैड टू गो एंड अपडेट माय पिक्चर फोटो अच्छा। बेसिकली। तो ओके। अभी आई थिंक उसमें गवर्नमेंट एडवाइजरी आई हुई थी कि अगर आपने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया और अगर 10 साल हो गए हैं और आपने अगर फोटो अपडेट नहीं करवाई है तो आपको फोटो अपडेट करवानी होती है। अदरवाइज नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती, बट आई हैव हर्ड कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज लेते हुए और उनको ब्लॉक कर दिया उसने बिकॉज फोटो अपडेट नहीं हुई थी ना। अच्छा। आप फॉर एग्जांपल आप 1 महीने 2 महीने के ट्रिप पे गए हो और आपने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन करनी है बिकॉज नाउ एवरीथिंग गेट ऑथेंटिकेटेड योर आधार यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? सो और आपका आई स्कैन वगैरह होता है उसमें और वो ब्लॉक कर दे उस टाइम पे, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो प्रोएक्टिवली अगर कोई जा रहा है और अगर उसको लग रहा है कि मुझे, और या उसका सेटल होने का मन भी है वहां पे और 8-10 साल पहले उसने अगर आधार कार्ड बनवाया था, तो जस्ट गो टू एनी आधार सेंटर एंड देन अपडेट योर फोटो फॉर ओके। योरसेल्फ एंड फॉर फैमिली। दैट्स वन थिंग यू नीड टू डू। अनदर थिंग आई थिंक अभी नया कॉन्सेप्ट आ गया फैमिली आईडी का। सो अदर देन द आधार कार्ड यू हैव टू गेट योर फैमिली आईडी क्रिएटेड एज वेल। सो ओके। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गया था, सो आई गोट माय फैमिली आईडी क्रिएटेड एज वेल, जो उसमें बेसिकली दे आस्क अबाउट योरसेल्फ, योर स्पाउस, योर किड्स, and then you basically वो राशन कार्ड का एक ऑल्टरनेटिव है। And then you have to provide your yearly income as well, because I think based on that they put you into a category कि आप poverty line में आते हैं, below poverty line आते हैं, या आप किस income bracket में हैं, so that government can decide कि किन किन को सब्सिडी देनी है, किन किन को सब्सिडी नहीं देनी है। Plus that also gives some data to the government कि हमारे कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। I think there's a lot of data ओके। collections happening on that ओके। part. And प्लीज। so we were talking about Aadhaar card, and then we were talking about property ID. Third thing is about your no sorry, we talked about Aadhaar card, family ID, and third thing is property ID. अभी आई थिंक अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है इंडिया में, कुछ एरियल सर्वेज हुए थे जहां पे एवरी प्रॉपर्टी गोट टैग्ड विद द प्रॉपर्टी आईडी, और वो रैंडमली उन्होंने कहीं पे भी किसी के नाम पे भी कुछ भी डाल दिया है। सो नाउ आई थिंक यू हैव टू गो एंड ओपन एन एक्सेप्शन, और आपको म्युनिसिपैलिटी में, आपकी लोकल म्युनिसिपैलिटी में जाके और आपके केसेस को ठीक कराना होता है, सो दैट द राइट प्रॉपर्टी आईडी गेट टैग टू योर नेम एंड देन राइट प्रॉपर्टी गेट टैग टू योर नेम। और ताकि अगर आपको बाद में सेल करना है उसको, अगर आपकी प्रॉपर्टी आईडी सही नहीं है तो आपको सेल करने में उसको प्रॉब्लम होती है। सो जस्ट मेक श्योर कि ये 3-4 चीजें हैं आपकी, जो अगर आप आओ तो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ देम एंड देन गेट देम फिक्स्ड। ओके, ग्रेट। अगला जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है वो है इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। फॉरगेट अबाउट कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से आपको इंश्योरेंस मिला हुआ है। थिंक अबाउट कि पीपल आर कमिंग एंड दे आर स्टार्टिंग अ न्यू जॉब और दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है जो बाहर से, उसके बारे में क्या गाइडलाइंस हैं? Okay, personally, I have never tried it, but whatever I heard from people experiences कि normally अगर आप बाहर से लेते हो तो
दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक इज मिनिमम काइंड ऑफ लाइक आप 4-5 लाख रुपए का कवर ले लो, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आप टॉप अप ले सकते हो उस पर, राइट। सो अनदर 5 लाख 10 लाख का टॉप अप ले सकते हो। जो टॉप अप होता है वो कंपैरेटिवली चीपर होता है। एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो अगर आप बाहर से लेते हो तो उसमें प्री डिजीज आपकी वो कवर नहीं करते। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पहले से डायबिटीज है या पहले से आपको हाई ब्लड प्रेशर है और उसकी वजह से आपको कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, तो विद इन फर्स्ट 3 इयर्स वो उसकी वजह से कवर नहीं होगी। बट आफ्टर 3 इयर्स दैट गेट्स कवर्ड। सो इट इज वाइज कि अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल वो आप इंश्योरेंस ले लो, ताकि कोड फॉरबिट अगर आपको 2-3 साल बाद अगर कुछ होता है तो एटलीस्ट आप उस प्री कंडीशन से बाहर निकल चुके होते हो, एंड देन यू गेट द फुल कवरेज। But luckily, whenever I have been to India, I've been through my company, so I always got an insurance within my company, so I never had to deal with that. But that's what a lot of people do when they go to India. They take first like 4-5 lakh a basic package, and on top of that, another 4-5 lakh a top up. That's how they do it. ओके, एंड दैट गोज विद द टर्म इंश्योरेंस एज वेल, अगर वो कंपनी से नहीं है तो वो भी ले लेना चाहिए, राइट? Yeah, that's another thing. The term insurance you can take, and then term insurance depends कि आपके पास अपनी कितनी कॉर्पस है। वो उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास आपकी अपनी खुद की कॉर्पस है और आपको टर्म इंश्योरेंस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, इस पे बहुत सारी डिस्कशंस हो सकती हैं। सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, सो आई वुड रादर नॉट टॉक अबाउट दैट। बट ओके पर्सनली आई डोंट हैव टर्म इंश्योरेंस। ओके ओके, नो वरीज। ठीक है, अब अगला जो मेरे दिमाग में आता है, हाँ, स्कूल। बच्चों के स्कूल को सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, कि क्योंकि आपने 2-3 बार ढूंढा, राइट? 2-3 बार अलग अलग शिफ्ट किया। तो स्कूल्स को लेके अगेन एवरी पेरेंट्स हैज देयर ओन प्रायोरिटीज कि, और हर किसी का अपना एक पेरेंटिंग स्टाइल है कि how much pressure they're putting on their kids from an education perspective, whether they want their kids to be more on education side versus more on like all-rounder side, that they want to do curriculum activities as well, co-curricular activities as well, and then sports and everything, music and arts and all those things as well. So depend karta hai. There are a lot of schools which focuses more on curriculum activities. There are more schools which are focusing only on co-curricular activities. Like for example, जैसे इंडिया में एक प्रसीदम करके स्कूल है, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस होता है बजाय कि करिकुलर एक्टिविटीज से। बट अगर आप डीपीएस में जाओगे तो करिकुलर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस होता है वहाँ पे बजाय कि को करिकुलर एक्टिविटीज पे। सो डिपेंड कि आपका बच्चा कौन सी ग्रेड में है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लाइक जब मैं इंडिया मूव किया था तो माय किड वाज गोइंग टू प्री नर्सरी वन टाइम, एंड देन द नेक्स्ट टाइम ही वाज गोइंग टू फोर्थ ग्रेड। So जब when he was going to pre nursery, I was least bothered about school and all those things, क्योंकि किसी भी स्कूल में चला जाए, प्ले स्कूल में, doesn't matter. I was looking कि जो मेरे स्कूल घर के पास हो, तो मदर्स प्राइड वाज द स्कूल व्हिच वाज एट दैट टाइम। एंड देन जब मैं जर्मनी से इंडिया मूव हो रहा था हैदराबाद में, सो आई डिड सम लोकल रिसर्च कि कौन कौन से वहाँ पे स्कूल्स हैं, उनमें कौन कौन से बोर्ड्स हैं, आईबी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। Then I did a lot of research as well कि what are the benefits of IB versus what are the benefits of CBSE. IB board are good, they are recognized by more than 100 countries. बट उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि अगर आप इंडिया में एजुकेशन करना चाहते हो अपनी हायर एजुकेशन, तो अगर और आप आईबी बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर यू दैट यू कैन गेट इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देयर, क्योंकि द वे दे टीच यू इन आईबी बोर्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट्स मोर with a pattern of like US universities or UK universities or European universities. So my take was that I would rather stick to CBSE. One is that we were aware about the curriculum rather than, एंड दूसरा सबसे बड़ा आईबी बोर्ड का प्रॉब्लम ये है कि स्कूल्स में आईबी बोर्ड तो है, बट स्कूल्स में आईबी बोर्ड ट्रेन्ड टीचर्स नहीं है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप देखो फॉर एग्जांपल एक स्कूल है एबीसी, वो पहले सीबीएसई में पढ़ाते थे, और अभी उन्होंने एक एबीसी स्कूल ने अपनी आईबी बोर्ड ब्रांच भी खोल ली है। अगर आप देखोगे नॉर्मली जो उनके सीबीएसई वाले टीचर्स ही हैं वही आईबी बोर्ड में भी पढ़ा रहे हैं। एंड आई डोंट नो, देयर इज नो डाटा कि उन्होंने वो आईबी बोर्ड की ट्रेनिंग कहाँ से करवाई है, उनकी क्या सर्टिफिकेशंस हैं, डिड दे रियली गो टू दोज यूनिवर्सिटी जहाँ से वो एक्रेडिशन हो रही है, राइट? स्विट्जरलैंड का वो बोर्ड है, वहां से उनकी एक्रेडिशन हो रही है अगर, तो वहां से किस तरह की उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है, राइट? वी डोंट नो दैट। सो अगर सीबीएसई वाले टीचर ने ही आईबी को पढ़ाना है तो आई डोंट सी मच ऑफ डिफरेंस, बिकॉज आप उसके अंदर से वो चीज निकाल ही नहीं सकते जो उसका पढ़ाने का स्टाइल है। ही और शी विल स्टिल बी टीचिंग इन अ सीबीएसई पैटर्न। So, वो दैट वाज माय टेक एट दैट टाइम। आई थिंक उस टाइम पे आईबी बोर्ड इतना मैच्योर भी नहीं हुआ था। तो अब धीरे 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 मैच्योरिटी आ रही है। आई एम श्योर कि कुछ अच्छे स्कूल्स होंगे जो जहाँ पे
टीचर्स कुछ अच्छे ट्रेंड भी होंगे, बट दैट्स वेरी सिलेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि आज आप कोई स्कूल चूज करते हो बेस्ड ऑन कि आज उनका स्टाफ क्या है, और आज आपका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है, 6 महीने बाद आपको पता ही नहीं है ना कि वो स्टाफ सेम है उस हम्म, स्कूल में नहीं है। If a teacher is getting a better opportunity somewhere else, they can move maybe in the same city राइट। to a different school and to a different city in a different school. So पहले जब हम लोग पढ़ते थे, अगर हम किसी स्कूल में जाते थे, नॉर्मली अगर आप वहां पे टीचर्स देखो तो 15-20 साल से वही टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, एक हाँ, रेपुटेशन बनी हुई होती थी, राइट? अगर हम बिल्कुल। ट्यूशन भी पढ़ने जाते थे उस टाइम पे, तो वी न्यू कि अच्छा फिजिक्स के ये प्रोफेसर है, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, तो हम उन्हीं से पढ़ते थे, राइट? वो उनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। बट नाउ डेज इट्स नॉट लाइक दैट। सो सेलेक्टिंग अ स्कूल इज अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग, और हर पेरेंट का अपना डिफरेंट तरीका है उसको सेलेक्ट करने का। माइन वाज कि मैंने थोड़ी बहुत लोकल रिसर्च की वहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स हैं, कितने टाइम से वो एस्टेब्लिश्ड है, उनके 10th ग्रेड के कैसे रिजल्ट्स हैं कंपैरेटिवली, वो अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज और किस किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इफ लकीली आई गॉट अ चांस कि आई कुड टॉक टू couple of parents as well जिनके बच्चे वहां जा रहे थे, तो आई टुक अ फीडबैक फ्रॉम देम एज वेल। एंड आई डिसाइडेड एंड थॉट कि लाइक हम लोग 1 साल के लिए अपने बच्चों को कराते हैं, अगर हमें सही लगा तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, अगर हमें सही नहीं लगा इन द 1 साल में हमें पता भी लग जाएगा कि बाकी और कौन कौन से स्कूल्स हैं हमारी सोसाइटी से, और कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो 4th and 5th ग्रेड में इट वाज नॉट मेकिंग दैट मच ऑफ अ डिफरेंस, वी कुड ऑलवेज चेंज दैट, राइट? ओके। अगर किसी का बच्चा 8th 9th 10th या 11th 12th में आ रहा है, देन इट बिकम्स मोर ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस कि हाँ उनको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। ओके, नहीं, इस बात को मैं मानता हूँ कि मैंने भी जो अपनी रिसर्च की थी उसमें मुझे लगा था सीबीएसई बोर्ड ही बेटर है। उसका रीजन है, अ, अगर हमारा माइंडसेट ये होता है कि नहीं, अगर वो इंटरनेशनल दोबारा वापस गया या फिर वो तो उसे प्रॉब्लम आएगी ये वो, आई डोंट थिंक सो। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि हम सब लोग, मैं तो स्टेट बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, राइट? तो सीबीएसई बोर्ड से भी नहीं, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग सीबीएसई बोर्ड से होते हैं जो एनआरआईज होते हैं। तो हम्म, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर जाते हैं और जब वो मास्टर्स करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं तब वो सेम लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो उनके जॉब रिक्वायरमेंट में जो चीज चाहिए होती है वो सुपरसीड कर जाती है, राइट? और इतने एनआरआई जो वहां पर ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से ही है। तो आज की डेट में भी अगर सीबीएसई बोर्ड से आप करते हो तो आपके एवेन्यूज ज्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि अगर इंडिया उस लेवल पे पहुंच जाएगा या पहुंच रहा है, या अगर बच्चे को मन लग जाता है इंडिया में, वो इंडिया ही रहना चाहता है, तो आप देखिए ना हम्म, कि आपको आईएएस पीसीएस या फिर गवर्नमेंट जॉब में छोड़ भी दूं, अगर वो ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो मे बी वो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अदरवाइज वो किसी प्राइवेट उसमें भी जाना चाहता है, चाहे वो मेडिकल्स, क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि आपने एमबीबीएस मान लीजिए इंडिया से की, लेकिन जब आप यूरोप कंट्री जाते हो तो वो तब तक नहीं मान्य होगी जब तक उनका एक कोर्स ना कर लो, क्योंकि उनके ट्रीट करने का हमेशा डिफरेंट होता है, एनेस्थीसिया हम्म, देने का तरीका, उनका बंदे की इमरजेंसी कितनी है, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं उनका सब सारे स्टैंडर्ड डिफरेंट होते हैं। तो हम्म, मेरा ये मानना है कि सीबीएसई बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है, ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन ऐड एनीथिंग, बट यस, इट इट ओपन ऑल द एवेन्यू विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सीबीएसई बोर्ड की जो मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है वो वही हम्म, रॉट लर्निंग लगती है, कि जहाँ पे वी स्टिल गो विद लाइक रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई एम श्योर आई बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स इन इंडिया एज वेल, एंड मेरे खुद के नेफ्यू एंड हम्म, नीसेस हैं जो स्कूल में जाते हैं, एंड देन लाइक योर किड इज गोइंग। आई थिंक वो कल्चर अभी थोड़ा चेंज हो रहा है इंडिया में भी। इट्स नॉट अबाउट रोट लर्निंग, लाइक लॉट ऑफ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो रही है अभी आजकल इंडिया में, इवन इफ इट्स हम्म, सीबीएसई बोर्ड। एंड एवरी स्कूल इज डिफरेंट, इवन दो वो स्टैंडर्ड पैटर्न सीबीएसई के फॉलो कर रहे हैं, बट हाउ दे आर टीचिंग दोस कॉन्सेप्ट्स एंड देन what level of engagements they are having with industries and other areas from a kids perspective, वो भी change हो रहा है, I think. So वो again बड़ा subjective है CBSE and IB. I was okay with CBSE, but like, again, आप you don't have to make a decision right away. That's what I'm trying to say. या You या go to India, आप 1 साल ट्राई करो, then you learn more about that particular area कि वहाँ पे कौन कौन से schools हैं। वहाँ पे अगर IB बोर्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टाफ जो है आपका वो कहाँ से ट्रेंड है। अब वहाँ के पेरेंट्स से बात करो कि अगर उनके पहले बच्चे सीबीएसई में थे और अभी आईबी में आए तो उन्होंने क्या डिफरेंस फील किया है। इफ दैट रेजोनेट हम्म, विद यू, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार जो मैं चाहता हूँ वो ये स्कूल ऑफर कर रहा है फ्रॉम एन आईबी परस्पेक्टिव, गो फॉर इट। हाँ, अगेन यू डोंट हैव टू जस्ट मेक अ हार्ड जजमेंट कि हाँ जब मैं यहाँ से मूव हो रहा हूँ तो एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट फ्रॉम डे वन। इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आपने जो पॉइंट बोला ना, मैं उसमें थोड़ा और क्लैरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये फील किया। सेम सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
पैटर्न का मतलब ये है कि जैसे मेरा बेटा जहाँ जाता है उसमें अब ये बताना ही बंद कर दिया है कि कौन फर्स्ट आया क्लास में, कौन सेकंड आया। पीटीएम में बुलाएंगे, आपके नंबर बता दिए जाएंगे, आपके नंबर ये है। कंपैरिजन करना बंद किया है, विच इज गुड प्रैक्टिस, जिसमें हम्म बच्चे स्ट्रेस में आ जाते थे काफी, कि हम्म यार मैं तो हमेशा पीछे ही आता हूँ, क्लास में सबसे पीछे हम्म रहता हूँ, या जो टॉप करता था वो हमेशा चौड़ा होके घूम रहा है ना, हम्म कि आई एम द टॉपर ऐसा करके। ठीक है, तो एक तो ये देखा मैंने, दूसरा सेम सीबीएसई बोर्ड के केस में मैंने एक स्कूल ऐसा भी देखा जो 7th 8th क्लास तक एग्जाम्स ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम्म उन्होंने अपना, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स नहीं है, बोर्ड एग्जाम तो यस फोर्सफुल है, लेकिन उससे पहले वो ओनली एक्टिविटीज करा रहे हैं, ओनली उसको हम्म प्रैक्टिकल उस पे उसका मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, या मार्क्स भी बहुत ही लाइट उसमें रख रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपकी कोई मार्किंग होगी, इट्स जस्ट द 7th 8th तक यू यू गो, यू विल बी पास ऐसे करके। हम्म ठीक है, हम्म तो यस मैंने भी वो फील किया है, एंड ये पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन अभी भी इवॉल्व हो रहा है, हम्म और अभी भी इसको और मेच्योर होना है। राइट। And and another thing I want to add on that from a school perspective, how we have been learning so far for last 40, 50 years versus how we're going to be learning in next 10 years is going to be completely changed because of हाँ AI coming into picture. Evolution of these AI technology like ChatGPT, Google Gemini, and all those things, they're going to change the entire way of learning things. कि जिस तरीके से हम आज तक स्कूल में पढ़ते हैं, because I use the technology a lot, and then I see that I always have a personal tutor 24/7 in my hand, and I don't have to be relying on somebody to tell me कि how that particular thing needs to be solved or needs to be learned. अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल लाइक मैं और मेरा बेटा जब हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ रहे होते हैं, साइंस पढ़ रहे होते हैं, देयर समटाइम देयर क्वेश्चंस, earlier there was no other way just going into Google and doing a lot of research or going into library and finding out a book and then finding out कि exactly इसके ऊपर क्या है. But now you can just ask a simple question to Gemini or chatbot or ChatGPT, and then it will give you the right answer right away. So uh, I think avenues पूरे change हो जाएंगे, that how we've been learning so far. So I'm pretty excited about it. I think that's going to change the entire way of learning things, not just for kids but for us as well. या ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक पे आते हैं, या फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं अगर कुछ और बीच में नहीं आता है तो। कार, Hmm. कोई बंदा सेटल हो रहा है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, कि ठीक है मैं वहां जाके 2 3 मैं डिफरेंट सिनेरियोज देता हूँ। जाते ही अगले हफ्ते में कार ले लेनी चाहिए, या 1 2 महीने रिसर्च करनी चाहिए, कोई रेंटल ले लेनी चाहिए, या फिर किसी से बोरो कर लेनी चाहिए, या फिर आपको वेटिंग मिली कार में। तो कार के केस में आपके क्या सजेशंस हैं, कि सेकंड हैंड लेके स्टार्ट करना चाहिए या नई लेनी चाहिए, और क्या बजट रख सकते हैं एक डिसेंट कार के लिए? Okay, again, very very subjective because हम्म, usually Europe, US में लोग थोड़ी luxury car drive कर रहे होते हैं, so they don't want to shift back to कि मैं एक normal car पे आ जाऊँ. So if you want to maintain luxury, if you have earned that much of a corpus and you can afford it, go for it. Nobody is stopping you to do that. बट हाँ, अगर आप एक स्टैंडर्ड कार की बात करो तो पहले इंडिया में एक्चुअली ऑप्शंस बहुत कम थे. अगर आप 10 12 लाख रुपए की कैटेगरी में जाओ तो आपके पास सिर्फ एक होंडा सिटी होती थी, एक हुंडई वरना होती थी नॉर्मली, जो आप कार पे जाते थे. But now there are like a lot of options from Hyundai, Kia, Mahindra, Tata, and all those things, right? And they're good quality cars as well. पहले इतनी अच्छी quality cars भी नहीं होती थी. So my personal experience अगर मैं आपको बोलूँ तो पहले तो you have to make up a mind कि आप यहाँ पे long term रुकने वाले हो, right? Based on that, because it's a big ticket item, so you need to make sure कि you're spending that money wisely. And इसमें भी 2 3 सिनेरियो हो सकते हैं, right? How much comfortable you are in taking in second hand car, right? कुछ लोग comfortable होते हैं, कुछ लोग नहीं comfortable होते हैं. If you are, or जहाँ तक when you said that कि should you wait for a month or two, usually car is something which you need from day one, especially जब आप एक दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में सेटल हो रहे होते हो. But again, you need it from day one, but you really don't need it from day one because आजकल Ubers and Olas हैं, right, which can serve you very well. And आपको कहीं जाना है, कुछ करना है तो आप ले सकते हो. आजकल Zoom कार वगैरह भी हैं, जहाँ पे जब मैं हैदराबाद आया था तो I took rental car from Zoom for 3 months. And then because उस time पे COVID situation भी थी, तो I was in a different situation because when I was trying to buy a car, there was a long waiting time, so I had to take a rental car. But then because I bought a new car and then I had to sell it because I had to move back to US. So वो भी आपको देखना है कि how long you gonna be here. ओके। अगर आपके पास बफर है कि आप रुकना चाहते हो ना long term, so then yes, you can spend on a new car. That's not a problem.
बट अगर आपको लग रहा है कि यार मैं शायद 1-2 साल में या 2-3 साल में फिर से जा सकता हूँ, नॉट एट द सेम लोकेशन, मे बी टू अ डिफरेंट लोकेशन, मे बी यू कैन गो फॉर अ सेकंड हैंड कार। इन दैट केस अगर आपको दोबारा वो सेल आउट करनी पड़ती है तो यू कैन इजीली सेल इट, और उसमें थोड़ा नुकसान कम होगा बिकॉज नई कार पे डेप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा है। And also, like, rather than buying from a random person, because you are out of the market for a certain number of years, जब आप बाहर रह रहे होते हो तो आपको पता नहीं होता कैसी मार्केट है, क्या है, कैसी गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है। एंड इंडिया में वेयर एंड टेयर भी काफी ज्यादा है। तो गो हम्म। फॉर प्री ओन्ड कार्स। जो आजकल महिंद्रा की, मारुति की प्री ओन्ड एजेंसीज हैं, वहां आप जाओ जहाँ पे देयर लॉट ऑफ इंस्पेक्शन दे ऑलरेडी डू फॉर 100 and 150 इंस्पेक्शन। आप वहां से जाके, और वो आपको शायद 1 साल वगैरह की कुछ गारंटी वगैरह, वारंटी वगैरह भी देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके वो कार ले सकते हो बेस्ड ऑन योर टेस्ट अगेन। सब बड़ा सब्जेक्टिव सा है कि यू वांट अ न्यू कार, यू वांट अ सेकंड हैंड कार, हाउ लॉन्ग यू गोना बी देयर, व्हाट्स योर बजट। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है उसमें भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 लाख रुपए की कार ले रहे हो तो शुड आई जस्ट गो एंड डायरेक्टली पे 10 लाख रुपए, क्योंकि आपके पास है 10 लाख रुपए देने के लिए। कुछ लोग हैं कि यार अगर मुझे 8-9% पे या 9% पे लोन मिल रहा है तो आई वुड जस्ट डू अ डाउन पेमेंट, आई विल बाय अ कार and I'll invest my 9 lakh rupees, which is giving me 12-15% investment. Usse I'm not losing all my liquid amount at the same time, and I got a car as well to drive on. So it depends on you that how financially aware you are based on how you want to manage your finances. तो आप 1 लाख रुपए में जाके अपनी कार लेके आ सकते हो, 9-10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे 12-15% आप अर्न कर सकते हो नॉर्मल इंडेक्स फंड से। Then you can just keep paying for your monthly investments from that. आपकी इस बात से मुझे याद आया कि मैं देखने वालों को बता दूं, राकेश का फाइनेंस पार्ट बहुत स्ट्रांग है। एंड हम लोग आपस में जब बात करते हैं तो जब परसेंटेज और आरओआई की बात करते हैं कि किस चीज में कितना रिटर्न्स आ सकते हैं, क्या हम इन्वेस्ट करें, कितना हम अपना होल्ड करें, कितना किस में लगाते हैं, तो वी डिस्कस इन वेरी मच डीप डिटेल। और इस चीज पर हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर अपने एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम लोग फाइनेंस में जाएंगे। आज हमने फाइनेंस की कोई बात नहीं की। आज हमने ये बात नहीं की कि अच्छा ठीक है, आप कितना अमाउंट वहां से लेके आ रहे हो, उसका क्या करो, कितना इमरजेंसी फंड फंड में रखो, कितना आप कार में खर्च करो, कितना आप किस चीज में लगाओ। ठीक है। तो हम लोग इस चीज पे भी टॉपिक बनाएंगे, इस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मेनली ये फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्टिंग, वंस यू डिसाइडेड टू गो बैक टू इंडिया, देन यू रीच देयर। बट फाइनेंस पे एक इट्स अ वास्ट टॉपिक। ठीक है। तो इस पे हम लोग अलग से बनाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज का हम लोग यहीं इसको स्टॉप I'll, करते हैं। I'll एंड बिफोर दैट यू वांट टू से समथिंग? Yeah, I'll just add up one more thing. कि kids के आधार कार्ड के लिए, I think a lot of people struggle with that part if they are US born, or if they do not have an Indian nationality. In that case, how do they get the Aadhaar card? In that case, you need the OCI card for your kids. And OCI cards के लिए, OCI card अगर आप लेके आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो नॉर्मली आई थिंक जो CC सेंटर्स होते हैं, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, CC सेंटर, वहां पे नॉर्मली ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो दे आर सर्टेन बैंक्स जहाँ पे इन्होंने आधार कार्ड सेंटर खोले होते हैं। अगर आप वहां जाओगे, they accept the OCI card. They'll take parents' passport and visa, and based on that, you can get your Aadhaar card done as well for your kids. Because usually Aadhaar cards are used everywhere when you go for school admissions or anything else. या बैंक अकाउंट पे खुलवाना चाहते हो आप, तो that's another way of getting Aadhaar card for your kids as well, which a lot of people struggle with, I think. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, अगर लोगों को नहीं पता है तो, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है और आपने उसका आधार कार्ड बनवाया है, तो उसकी जो पिक होती है, जैसे मान लीजिए 6 महीने पिक जो ली है, वो तो चेंज होती थी हर 6 महीने, 1 साल पे शक्ल चेंज भी होती है। तो वो अगली बार आपको 5 साल से पहले वो दोबारा चेंज नहीं करेंगे। तो यू हैव टू वेट फॉर 5 ईयर। उसके बाद आप उसका दोबारा से पिक को चेंज कराने के लिए चाहिए, क्योंकि वो पासपोर्ट में भी इम्पैक्ट डालती है अगर वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। ठीक है। आपकी इस बात से फिर से मेरे को आइडिया आया, एंड आइडिया कीप कमिंग इन माय माइंड, आई डोंट नो हाउ। हम लोग ओसीआई कार्ड पे भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ठीक है। Sure. Yeah, we can do that. क्योंकि बहुत क्वेरीज मेरे को ओसीआई कार्ड पे भी आती हैं कि क्या क्या कवर है, क्या क्या नहीं कवर है। 401 के पर आती है। ठीक है। हम लोग 401 के पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, और इस पे अलग बनाएंगे, वट एवर आई मेंशन। ठीक है। ओसीआई कार्ड एंड देन फाइनेंस पे अलग बनाएंगे। तो एक पूरी सीरीज बनाएंगे जिससे एक तरीके का ना पूरी एक टेम्पलेट बन जाएगी कि कोई अगर कुछ जानना चाहता है तो वो वीडियो देखे और उसको आंसर मिल जाए डिटेल में। कुछ है तो वो तो हम बाद में टेक केयर करते हैं। ठीक है। या यू वांट टू से समथिंग?
Sure. No, no. I just want to say that I'm not an expert on all the things, but whatever I know, whatever I've Yeah, experienced as a part of my journey, I'll share that information, exactly. and I hope that can be helpful. एग्जैक्टली एंड ये डिस्क्लेमर भी है देखने वालों के लिए, दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट फॉर द हेल्प एंड दिस प्लेटफॉर्म जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और आज मैं राकेश को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा किया है और इससे लोगों की हेल्प होगी। तो जो एक्सपीरियंस किया है वही हम शेयर कर रहे हैं। हमारे व्यूज किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उसके ना तो सपोर्ट में है ना किसी के अगेंस्ट में। हमने कोई सर्विस यूज की, हमें अच्छी लगी हम तारीफ करेंगे, हमें अच्छी नहीं लगी हम उसको फीडबैक देंगे कि भाई इंप्रूव कर लो। सिमिलरली इट्स ऑल अबाउट, इट गोज विद एवरीथिंग, राइट? वी एक्सपीरियंस इन केस ऑफ बैंक अकाउंट, इन केस ऑफ ओसीआई कि यार ये अच्छा था, ये ऐसे हो सकता है, ये इंप्रूव हो सकता है, ठीक है? And then we share that, and we are not expert, definitely it's just that we are trying to help, that's it. Okay, okay, Rakesh, so having said that, Sure. thanks for your time, and we'll meet again very soon. Sure. Yeah, Thanks for having me. Take care, buddy. Thank you. yeah, thank you. Okay, let me start.